उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीरमामृतात् रुद्राणि नीलकण्ठानि सम्भवेशाय सर्वादय महादेवाय ते नमः। प्रणवं परमेश्वरम् ओंकारं प्रणवात्मानं तन्मे मनःशिवसङ्कल्पमस्तु। रामनाथपरशिवादिनमः कुम्भाभिषेकानन्तरं दिव्यमङ्गले कर्पूरनीराजनं संदर्शयामि। कर्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। कैलासशिखरे रम्ये शङ्करस्य शिवालये देवताः शस्त्रमोरन्ते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। रुद्राय प्रदेदसे मे दुष्टमागतव्यसे बोधे वसन्तमकं मृते सर्वभोग्ये च रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु। पहली बार पता चला सर कि साउथ में परिक्रमा
our privilege and honor that the Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath, is with us. Today's possibility, today whatever is possible here and happening here, the event which is momentous and etched in our heart forever to come, is because of Shri Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh. The legend, the folklore, and what has been in Ramayana for thousands and thousands of years, and the sacrifices of Sita Devi, the princess of Ayodhya. Now down south from Tamil Nadu, we carry a folklore and we carry a song. We carry the adoration for Princess Sita Devi. That prayer song shall begin with you. Go ahead and give the song as a welcome address and a welcome song to Shri Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh. நல்ல கணபதியே நான்காலமே தொழுதால் அல்லல் வினைகள் எல்லாம் அகின் மேல் சொல்லறியேன் தும்பிக்கை யானை தொழுதால் வினை தீரும் நம்பிக்கை கொண்டு நமக்கோர் விநாயகரே செய்யா தடுந்தனென்னும் தானே
it is our pleasure to request Sri Ayyaji, our Sri Ayyaji, to welcome the gathering and the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Sri Yogi Adityanath, and all those who have assembled here. Ayyaji, that one. Most respected Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Sri Yogi Adityanath ji. Most respected my guide, my philosopher, my friend, and my beloved Sri Bayaji. My families and my friends who travel all over the world, my pranams to you one and all. And finally, the people who made this day by investing the potential effort and bringing back this tremendous morning, my pranams and gratitude to you, the people search, Mestri, Sittar, construction workers, security personnel, and the people who are strike force, and then special force, and then the cultural team who actually traveled all over from Tamil Nadu. My pranams and gratitude to you. I am indebted to my life. Thank you so much for your eye. I feel honor and privilege to be in stand front of you people to welcome you to the grand Kumbhabhishekam of Sri Ramanatha Swami Temple. Before I go to commence my speech, I just want to share few events which actually happened before several months, so that you can able to identify and then calibrate why you people are actually here and how our travel is there and how we are actually stand over in front of our Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh. On one fine day, when I requested Sri Bayaji to install one shivling, I thought it would take some time since I don't know anything about their process especially and the protocol actually involved. But in fine of a day, Sri Champatraj ji deputed his own team, and Sri Gopal ji in an action he showed us actually 3 places, out of which I choose one. This is the primary place to build Uttar Pradesh shivling on this soil, so I choose that one. And the moment of the work started excellently, and finally we have our Honorable Chief Minister as the Sikar of this temple. Thank you once again, Ji. As all you people know that Ma Sitama built a same shivling at Rameshwaram on the southern part of Tamil Nadu, as you know that. Now here, this Ramanatha Swami is for the people of Uttar Pradesh and the rest of the country and to the rest of the world. I personally welcome Honorable Chief Minister Office to stand by us, shoot us by navigating all the minor and the major aspects, what is to be done and how the things can be easily clarified, and the way of arranging the protocols. My personal welcome to you people, especially Honorable CM Advisor Sri Avanesh Avasthi ji. Pranams ji. I invoke my blessing to Sri Ramandir and then Sri Ramanatha Swami Temple and the people who actually gather here.
once again, my humble welcome to the Grand Kumbhabhishekam of Sri Ramanatha Swami Temple. I just want to communicate on my wish in my own mother tongue even too. உங்களை வருக வருக என்று இந்த மண்ணிற்கு தென்னக மண்ணிலிருந்து அயோத்தியா மண்ணிற்கு ராமபிரானை தரிசிக்க ஸ்ரீ ராமநாத சுவாமியை தரிசிக்க இத்தனை பேர்கள் வந்ததற்கு கோடான கோடி நன்றியையும் வரவேற்பையும் தெரிவித்து நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Now we are going to honor the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Sri Yogi Adityanath. I request our Ayyaji to honor him. At this time, I request all of you to stand and give a standing ovation to the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, who has made everything possible for us to be present here. And this momentous occasion is because of his grace and because of what he thought should be done to us. Now, we are going to honor Sri Suresh Bayaji Joshi, former General Secretary and National Committee member of Rashtriya Swayam Seva Sangh, by our coordinator of Ayodhya Sri Ramanatha Swami Temple, by Sri Lohanathan. Now we honor Sri Surya Pratap Shahi, the Honorable Minister of Agriculture. It's my privilege to do it. Now I request for a special address by Suresh Bayaji Joshi, the former General Secretary and National Committee member of Rashtriya Swayam Seva Sangh. Please. मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी प्रेरणा से ये आज का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे परम श्रद्धेय अय्या मंच पर विराजमान सभी अन्य महानुभाव और विशेषतः दक्षिण भारत से आए हुए
सभी बंधुओं तथा बहनों, मेरा आपको नमस्कार है, वणक्कम है। एक इतिहास रचा जा रहा है। कई वर्षों के बाद राम का मंदिर यहां पर निर्माण हुआ और आज भगवान राम के अपने स्वयं आराध्य, इसलिए शब्द प्रयोग है रामनाथ स्वामी, राम के स्वामी। ऐसे भगवान शिव का मंदिर आज कुंभाभिषेकम हो रहा है। इस मंदिर का संदेश क्या है? व्हाट इज द मैसेज? क्या है? तो दक्षिण भारत के लोग आकर अयोध्या में मंदिर बनाया। ये दक्षिण भारत उत्तर भारत को जोड़ने का काम हुआ है। माध्यम भगवान शिव बने हैं, भगवान राम बने हैं। जब यहां पर 22 जनवरी को कार्यक्रम हुआ तब कई बड़े बड़े लोगों ने कहा कि भारत में परिवर्तन का चक्र प्रारंभ हुआ है। और जब आज हम अपने देश के राज्यों के नेतृत्व को देखते हैं तो इस परिवर्तन को गति देने वाले महापुरुष हमारे सामने हैं। हमारे अंदर विश्वास जगता है कि परिवर्तन आएगा। परिवर्तन की लहर होती है, एक आंधी होती है, तूफान। जब तूफान आता है तो नष्ट करता है, लहर आती है तो निर्माण करता है। आज अपने भारत में परिवर्तन की लहर प्रारंभ हुई। इसको आंधी में, तूफान में परिवर्तित नहीं करना है। हमको लहर को साथ चलते चलते इस देश का भविष्य तय करना है। इसलिए राम भक्त और शिव भक्त यानी क्या है? तो शिव यानी शुभ है, राम यानी आदर्श है। तो शुभ और आदर्श, इसका मिलन यहाँ पर आज होता हुआ दिखाई देता है। मैं इस कुंभाभिषेक के अवसर पर यहाँ पर आए हुए सभी महानुभावों का प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान संत प्रवर, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और विशेषतः अय्या ने अपना परिश्रम पूर्वक एक संकल्प लिया और संकल्प को पूरा किया, इसलिए उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और किसी भी राज्य के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है, इसलिए इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी मैं आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। Now we request the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath, to give his keynote address. अयोध्या धाम में नवस्थापित श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में महाकुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के इस आयोजन में जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में हम सबको आज यहां पर उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व
श्रद्धेय भैया जी जोशी जी, ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट आदरणीय श्री अय्या जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे वरिष्ठ सम्मानित दिनेश जी, अयोध्या के महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह जी, अवनीश अवस्थी जी और मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य संत जन श्री महंत कमल नयन दास जी, श्री महंत दिनेन्द्र दास जी, स्वामी राम शरण दास जी, स्वामी सीताराम त्यागी जी, महंत अवधेश दास जी, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, स्वामी भरत दास जी, आज के इस समारोह में उपस्थित अय्या जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले पूरे देश से और खास तौर पर तमिलनाडु से पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर की स्थापना का संकल्प लेने वाले हमारे ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट अय्या जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विश्व हिंदू परिषद के अपने महामंत्री सम्मान्य चंपत राय जी को, गोपाल जी को और अन्य पदाधिकारियों को कि प्रभु के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्व श्री रामनाथ स्वामी का विराजमान होना और उनकी कार्यशाला में विराजमान होना यह अत्यंत आनंद का क्षण है। मैं इसके लिए उन्हें भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। अयोध्या धाम और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है, यानी अगर इसको कहें तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का ये प्रगाढ़ रिश्ता आज से नहीं, हजारों वर्षों की एक परंपरा है। हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो श्री हरि विष्णु जी के एक अवतार थे, वे जब श्रीलंका में माता सीता को की खोज के लिए निकले थे तो तमिलनाडु वह स्थान था जहां पर श्री रामेश्वरम के पवित्र स्थल पर उन्होंने सेतु बंध के निर्माण के पूर्व अपने आराध्य भगवान शिव की प्रगाढ़ आराधना की थी
और शिव की कृपा से सेतु बंध का निर्माण भी होता है। और रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब माता सीता को लेकर के प्रभु राम आ रहे थे तो माता सीता ने वहां पर आराधना करते हुए इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया था। एक पवित्र आध्यात्मिक संबंधों के साथ जुड़ते हुए उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत एक है। इस संकल्प के साथ यह आध्यात्मिक परंपरा इन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मानबिंदुओं की स्थापना करते हुए आगे बढ़ रही है। और आज अय्या जी ने इस संकल्प को और सुदृढ़ता प्रदान की है कि अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी जी का भी भव्य मंदिर यहां पर बने। ये हमारी मत, संप्रदाय और पंथों की उपासना विधि की अनेकता के बाद भी एक भाव और एक भावना के साथ हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और वह संकल्प एक बार फिर से यहां पर देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से काशी में काशी तमिल संगमम के 2 महत्वपूर्ण संस्करण संपन्न हो चुके हैं। काशी और तमिल दोनों एक दूसरे के साथ किस रूप में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में वहां से आए हुए पूज्य संतों ने, विद्वानों ने और तमिलनाडु से आए हुए अनेक ऐसे महानुभावों ने इस संबंध को एक नई प्रगाढ़ता दी है। और काशी के बाद आज अय्या जी के कारण अयोध्या धाम भी तमिलनाडु के साथ जुड़ चुका है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। ये चीजें दिखाती हैं अय्या जी एक ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट है और आध्यात्मिक महत्व के कारण उनके द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रयास उसे एक नई गति देती है, एक नई दिशा देती है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को और मजबूती देने का एक अभियान है। बहनों और भाइयों, यह कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, एक तरफ हमारे संतों के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, उन स्थितियों में हमारे लिए श्री रामनाथ स्वामी जी का यह मंदिर, आज का यह कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक नई प्रेरणा हो सकता है, एक नई दिशा देने वाला हो सकता है। और इससे प्रेरित होकर के हम सब फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना प्राणपण से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं अभिनंदन करूंगा अय्या जी का, जिन्होंने लगातार इस दिशा में नए नए प्रयास प्रारंभ किए हैं और अपने प्रयासों के माध्यम से न केवल अपनी आध्यात्मिक साधना को, बल्कि इसके माध्यम से
उन्होंने भारत की एकता के लिए, एकात्मता के लिए उसी अभियान को एक नई गति दी है जो हजारों वर्ष पहले केरल से निकला एक सन्यासी भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करके भारत की सांस्कृतिक, भारत की आधारशिला रखते हैं। ये क्रम वही है और वही फिर तमिलनाडु से निकला एक सन्यासी, एक आध्यात्मिक संत भारत की एकता के लिए, भारत के आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, किसी भी स्थल पर अगर कहीं कोई ऐसी बात है कि जिसके कारण थोड़ा अधूरापन दिख रहा हो, उसकी पूर्ति के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास स्तुल्य हैं, अभिनंदनीय हैं और मैं इसके लिए अय्या जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर कालखंड में सांस्कृतिक रूप से एक रहा है, एक रहा है। हमारा वैदिक साहित्य इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है। हमारा शास्त्र इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भारत की संतों की परंपरा और हमारे धर्मस्थल इन बातों के प्रमाण हैं। हमने किसी भी कालखंड में सरकारें अलग अलग रही हो, लेकिन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता को कहीं भी खंडित नहीं होने दी, और यह इसलिए क्योंकि भारत की ऋषि परंपरा ने, भारत के संतों की परंपरा ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से इसे पूरी मजबूती प्रदान की है। आज उसी मजबूती को प्रदान करने के लिए तमिलनाडु से यहां पर अय्या जी अयोध्या धाम में आए हैं। अयोध्या धाम में उनका आगमन से रामनाथ स्वामी जी के इस भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, मेरा यह मानना है कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने में, पूरा मंदिर बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। यह काम तीव्र गति से चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अपने कर कमलों से संपन्न किया है। समाज का पूरा नेतृत्व वर्ग उस अवसर पर अयोध्या धाम में था और अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जनों ने 5 सदी के बाद अयोध्या में फिर से विराजमान हुए रामलला को अब तक दर्शन करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। मेरा यह मानना है कि अब अयोध्या धाम पूरी एक नई गति के साथ दुनिया की सबसे आध्यात्मिक और सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होकर के पूरे सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश का केंद्र बिंदु बनकर के उभरेगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं सरदेव भैया जी का, सरदेव अय्या जी का, पूज्य संतों का और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी उपस्थित श्रद्धालु जनों का, महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री रामनाथ स्वामी मंदिर का यहां पर कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस संकल्पना को और मजबूती देगा। आप सबके इस आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। Please have a standing ovation. Standing ovation.